Hello. Uh, so we'll see some more question from articles of Constitution. As you know that I'm dealing the questions of state PSCs. Okay, Indian polity. So those who are focusing UPSC or state PSC like UP PCS or Bihar PCS, RMP PCS, whatever it is, you can get advantage of this lecture series. Okay, I am dealing last 30 questions from these exams. Okay, so this is about myself. So let's see today's questions. I would like to say one thing. There is some you might get some disturbance from outside because some of the people is talking outside my room. So if you are getting those Y's, sorry for that. If you're not getting, is fine. Okay, so the next question is, if the new state of Indian Union is to be created, which one of the following schedule of the Constitution must be amended? Okay, so first, second, third, fourth. Okay. If a new state of Indian Union is to be created, then first schedule हमें amend करना होगा. Okay, so the answer is A. First schedule comprises state and union territories, hence it must be amended if new state or union territory is created. ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल में ये सब हमारा दिया गया स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में. तो कुछ अगर चेंजेस होता है तो क्रिएट होता है, सो वी हैव टू मेड amendment on this first schedule. Okay, now match list schedules of the Constitution, subject matter. देखिए इसमें 4th, 6th, 8th, 9th. देखिए मैं लक्ष्मीकांत की लेक्चर सीरीज़ भी कर रहा हूँ. तो अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने शेड्यूल 3rd चैप्टर रिकॉर्ड किया है. इसका आई थिंक 7वां पार्ट है. तो उसमें पूरा का पूरा जो शेड्यूल की लिस्ट दी हुई है, ठीक है, वो सारी लिस्ट की एक वीडियो ही मैंने बनाई हुई है. आई थिंक इट इज़ अ पार्ट 7. ठीक है, अगर आप वो वीडियो देखते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए पीस ऑफ केक है. ठीक है, आराम से आप इसको कर सकते हो. ठीक है, so anyway I will do this question here. So land reform, language, council of state, tribal area. Okay, so those who are watching, I will suggest you please watch that video as well, because I will upload that video and this video together, so that you will get get at one place. Okay, so these are the options that we'll see later. अब देखिए जो हमारा 4th शेड्यूल होता है, 4th शेड्यूल में क्या दिया हुआ है कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट है हमारा राज्यसभा में, उसमें एलोकेशन ऑफ सीट्स. ठीक है, 6th शेड्यूल जो होता है इट टॉकिंग अबाउट ट्राइबल एरिया. ठीक है, ये ट्राइबल एरिया के बारे में बात करता है. 8th शेड्यूल आपको पता है लैंग्वेज, 22 लैंग्वेजेस दी हुई हैं. ठीक है, बचा लास्ट में 9th लैंड रिफॉर्म. ठीक है, सो द आंसर इज सी. देखिए अगर आपको पता है सारे शेड्यूल 1 to 12 क्या क्या है, तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है. लेकिन अगर नहीं पता है तो इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. ठीक है, क्योंकि हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, कई लोग होते हैं कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, बट शेड्यूल के बारे में पता नहीं होता कि जो 12 लिस्ट है उसमें क्या दिया हुआ है. ठीक है, तो हमें इस तरीके से पढ़ना होता है. ओके, so 4th schedule allocation of seats in the council of state, 6th schedule tribal areas, 8th schedule languages, and 9th schedule land reform. ठीक है, फिर से देखिए वही शेड्यूल से ही क्वेश्चन रिपीट होंगे इस वीडियो में, सो नो प्रॉब्लम. अंडर विच शेड्यूल द of Constitution of India can be transfer the tribal land to provide parting for mining to declare null and void. देखिए अगर आप इससे पहले वाला क्वेश्चन देखें हैं तब ये आराम से कर सकते हो, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में. ओके, 3rd शेड्यूल, 5th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 12th शेड्यूल.
ओके, देखिए 5th शेड्यूल होगा, आप आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ अ 5th शेड्यूल। 12th शेड्यूल में ना 74th अमेंडमेंट म्यूनिसिपैलिटीज़, 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म, 3rd शेड्यूल में ओथ के बारे में होता है, ठीक है। तो सो द आंसर इज बी। सुप्रीम कोर्ट इन इट्स लैंडमार्क जजमेंट in the case of Samata versus State of Andhra Pradesh and other declared that the transfer of the tribal land to provide parties for mining is unconstitutional, ठीक है, unconstitutional, void and inoperative. The 5th schedule of Indian Constitution has provision relating to the administration and control of scheduled area and scheduled tribes. According to this, scheduled tribal land cannot be transferred to the private party, ठीक है। तो ये शेड्यूल पावर देता है कि जो शेड्यूल्स एरिया होते हैं वो किसी भी प्राइवेट पार्टी को, जैसे कोई बिजनेसमैन हो माइनिंग करना चाहता है, उसको नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। इससे पहले हुआ था ऐसा, तो फिर इनके साथ हुआ था समंता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तो वहाँ फिर वो ऑर्डर किया गया कि नहीं, यू कांट डू दैट, इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। सो द आंसर इज बी। फिर से देखिए 7th 8th 9th 10th, ठीक है। लैंग्वेज डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स, ओके। सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, तब अगर आपको शेड्यूल के बारे में पता है, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 7th शेड्यूल, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, देखिए जो आपको पता है पहले आप वो करो। 8th शेड्यूल लैंग्वेज, ठीक है। अब देखिए लैंग्वेज किस में बी को 1 से किस में मैच कराया, B1, तो ये 2 ऑप्शन तो गया, ठीक है। इसके बाद 10th शेड्यूल आपको पता है एंटी डिफेक्शन लॉ, डी को 2 से मैच होना है, ओके, डी को 2 से मैच होना है, बस सी आंसर हो जाएगा हमारा, 2 ही से आंसर हमें मिल गया, ठीक है। बाकी हमें नहीं भी पता है तो भी चलेगा, तो पहले आप देखो जो पता है उससे, अगर उससे भी नहीं आ रहा है तो फिर उसके बाद वाले में जाओ। तो मैच लिस्ट वाले का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, ठीक है। तो अगर आपको 2 भी पता है तो यू लैंड विद द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसमें चौथा क्या बचा, 9th वैलिडेशन ऑफ एक्ट ऑफ अ सर्टेन, या ठीक है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इसको, मुझे नहीं लगता कि बार बार बताने की, ठीक है, पढ़ देता हूँ मैं। 7th शेड्यूल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। 7th शेड्यूल में वही लिस्ट दिए हुए होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ओके। 8th शेड्यूल लैंग्वेज, 9th शेड्यूल वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट, 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, ओके। फिर से देखिए मैच लिस्ट, 7th 8th 9th 10th लैंग्वेज, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या, आई थिंक सेम क्वेश्चन इज रिपीटिंग, एनीवे थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन सेम है, हल्का सा स्टेटमेंट में चेंज किया है। लैंग्वेज डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड, यूनियन एंड स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट, ओके। सो लैंग्वेज, 8th शेड्यूल लैंग्वेज, 10th शेड्यूल वैलिडेशन, 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, 7th शेड्यूल यूनियन एंड इट्स स्टेट, एंड 9th शेड्यूल वैलिडेशन ऑफ एक्ट, ओके। तो आप इससे मैच कराओगे, डी आंसर होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, देखिए नॉट बोल रहा है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टेट लिस्ट, सेंसस यूनियन लिस्ट, एलोकेशन ऑफ सीट काउंसिल ऑफ स्टेट 2nd शेड्यूल, एंड आइडेंटिफिकेशन लॉ 10th शेड्यूल। देखिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ तो मुझे तो आराम से आंसर पता होगा, बट अगर आप इससे पहले वाले वीडियोस देखे हैं, मतलब इस या, तो आप आराम से, इवन आप अगर फर्स्ट टाइम यही वाला वीडियो देख रहे हो तो जो पिछले क्वेश्चन आपने किया उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को एकदम आराम से कर सकते हो,
यूपीपीसीएस में आया हुआ है 2019 में, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा, एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। ये गलत है, सेकंड शेड्यूल नहीं, इट्स अ फोर्थ शेड्यूल, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा, ओके, ये सही है। पब्लिक हेल्थ जो होता है स्टेट लिस्ट है, सेंसस यूनियन लिस्ट है, एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल, ये करेक्ट है, ओके। सो फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा, रेस्ट अदर्स आर करेक्ट, ठीक है। अब आई थिंक ये सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कौन सा नहीं ऐड है? इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ठीक है। अब देखिए काफ़ी लोगों को ऐसा लगेगा कि इंग्लिश ऐड, मतलब हम बोलते हैं ना सब जगह का लैंग्वेज है, सुप्रीम कोर्ट में बोला जाता है, हर कोई बोलता है, सो इट विल बी द पार्ट ऑफ ना 8th शेड्यूल, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। इंग्लिश इज नॉट द पार्ट ऑफ 8th शेड्यूल, ठीक है। ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ये ऑफिस का लैंग्वेज है, ठीक है, बट इट्स नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज, ओके। काम करने के लिए है, बट इट्स नॉट ऑफिशियल लैंग्वेज, ओके। सो द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल. Initially there was 14 languages, but presently there is 22 languages. Of these 22 languages, English is not one of them, ठीक है। तो ये सारे हिंदी, उर्दू, संस्कृत, बोडो, सांथली, मैथिली, ये सब हैं, बट इंग्लिश इज नॉट द पार्ट ऑफ 22 लैंग्वेजेस। नेक्स्ट, कोयलो केस इज रिलेटेड टू which schedule of Indian Constitution, okay, 7th, 8th, 9th, 10th, okay। so जो हमारा ये जो कोयलो केस है, इट इज रिलेटेड 9th शेड्यूल, ठीक है। अब आप याद करिए 9th शेड्यूल क्या था, ओके। 9th शेड्यूल हमारा था जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड था, कि ना जो लैंड रिफॉर्म हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो पहले ये था कि वो इट इज़ नॉट कमिंग टू जुडिशियल रिव्यू, इट इज़ नॉट ओपन फॉर द जुडिशियल रिव्यू, बट जो केशवानंद भारती केस हुआ था, ओके, उसके बाद से ये बोल दिया कि नहीं, जो 9th शेड्यूल है वो भी दैट ऑल्सो कमिंग टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। सो कोयलो केस इज अ लैंडमार्क केस विच अपहेल्ड द अथॉरिटी ऑफ जुडिशियल रिव्यू laws including one under the 9th schedule, ठीक है, अगेंस्ट वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कुछ भी है अगर बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करता है, वायलेट करता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इट कम्स इनटू जुडिशियल रिव्यू, ओके। इट आल्सो नोन एज द 9th शेड्यूल केस, ठीक है, इसको 9th शेड्यूल केस भी बोलते हैं। सो द आंसर इज सी, ओके। To constitutional protection, state land reform laws have been included in the 7th schedule, 9th schedule, 8th schedule, 10th schedule, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन को करने में किसी भी तरीके की दिक्कत होनी चाहिए, पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स 9th शेड्यूल, ठीक है। जो 9th शेड्यूल था, इसके थ्रू देयर वाज टू गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन, स्टेट लैंड रिफॉर्म लॉज हैज़ बीन इंक्लूडेड, ठीक है। कितनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं, सो नो प्रॉब्लम। द लॉ रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म एंड जमींदारी एबोलिशन हैव बीन गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन बाय शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच वॉज इंसर्टेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट इन June 1951, okay। So the answer is B. I think last question for this video, the 9th schedule was introduced in Constitution of India during the Prime Ministership of, ठीक है। तो जब 9th शेड्यूल ऐड किया गया था, तो कौन हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। सो ऑब्वियसली बात है, उस समय 1951 में ये अमेंडमेंट हुआ था,
So Jawaharlal Nehru was the Prime Minister of India. Okay, so the answer is A. Ninth schedule of Indian Constitution was introduced during the Prime Ministership of Jawaharlal Nehru. It was added by the Constitution First Amendment Act of 1951. The main objective of this Amendment Act was to insert provision fully securing the constitutional validity of Jamindari abolition law in general and certain specified state acts in particular. Okay, so when 9th schedule inserted into Indian Constitution, Jawaharlal Nehru was the Prime Minister.